Hello students, hope you enjoyed the previous class. So now we are continuing the same topic, that is nature and significance of management. Today I am going to cover the topic importance of management, and then second one is nature of management. So first we will move on to the importance of management. Importance of management. Importance of management consists of management helps in achieving group goal. Number 2, management improves efficiency. Number 3, management creates dynamic organization. Number 4, management helps in achieving personal objectives. Then management helps in development of society. Now I introduce management is a life-giving element in every business. That is, without it, the resources of production remain resources and shall never become production. So this is the introduction of importance of management. That means management is very important in the organization. Already we discussed in the earlier classes, that is how management is important. Like without proper management, the organization cannot succeed in anything. Resources of production, that is resources of production remain resource and shall never become production. That means हम जितना भी resources available resources है ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट द रिसोर्सेस इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स. दैट इज प्रोडक्शन में हम लोग को लाना है. सो वी हैव टू कन्वर्ट द रिसोर्सेस. हाउ वी कैन कन्वर्ट द रिसोर्सेस? विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ओनली. सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ओनली वी कैन कन्वर्ट द रिसोर्सेस इनटू प्रोडक्शन. सो व्हेन देयर इज नो मैनेजमेंट, सो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. लाइक लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. सो ये सब क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है. सो प्रॉपर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन से दैट फेलियर ऑफ एनी बिजनेस इज रिलेट्स विद द improper management in the organization. So now we move on to the importance of management. That is first heading, management helps in achieving group goal. Management helps in achieving group goals. Management directs the efforts of all individuals in common direction for achieving organizational goals. So management क्या करता है, management helps in achieving group goal. Through the management only we can achieve the goal of the organization. And other thing is what, how we can achieve the goal of the organization? With the help of any one person or with the help of only the manager can we achieve the organization goal? No. So there is a number of peoples. Already we discussed in the features of management, that is group activity. So what we discussed in the group activity, number of persons involved in the organization work, organization activities. So every people's efforts only achieve the organizational goal. So here every manager, the manager tries to integrate the individual goals into the common goal. So जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपल्स है, डिफरेंट यूनिट्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी पीपल्स है या इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज जो भी है, इन सबका गोल्स को जो है कॉमन गोल्स का टुवर्ड्स हम लोगों को डायरेक्ट करना होगा. देन ओनली वी कैन अचीव द गोल. सो एक मैनेजर ये सभी को जो है एक साथ में लेकर जाता है, तब हम क्या करते हैं, गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. Management improves efficiency. The second point is management improves efficiency. Management insists on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and so in an organization, a manager always try to achieve the goals with efficiently. Already management में हम लोग ये डिस्कस किए थे, management is the process of getting things done with effectively and efficiency. So efficiency के बारे में हम लोग पढ़े थे. What is efficiency? Efficiency means what? Cover the cost. Efficiency means cover the cost. That is, जब भी हम कोई production करेंगे तो we have to see that the resources जो भी हम resources utilize कर रहे हैं, the resources must be utilized in the optimum way and the wastages कम करना चाहिए, like कॉस्ट को कम करना चाहिए. सो कॉस्ट को कवर करने से ही हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ को अचीव कर पाएंगे. सो ये सब कैसा होगा, थ्रू द एफर्ट लाइक जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सभी फंक्शंस को हम एक साथ लेके काम करेंगे. तो ईच एंड एवरी टाइम हम प्लान करते हैं कि ओके फर्स्ट टाइम इन केस समथिंग हैपन्स
वेस्टेजेस ज़्यादा हो गया, देन हम लोगों को नेक्स्ट प्लान करना है कि नेक्स्ट वेस्टेजेस नहीं होना है. सो ईच एंड एवरी टाइम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम लेकर साथ में चलेंगे, देन डेफिनेटली क्या होगा, हम इम्प्रूव करेंगे. वन स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सो देन दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. ऑलवेज मैनेजर ट्राइज टू improve the efficiency by reducing the cost, so once if the organization start reducing the cost by giving maximum production, then automatically we can say that the management is efficient management in the organization. Now we move on to the third one. Management creates dynamic organization. Organization has to survive in the dynamic environment, so managers keep making changes that match the environmental changes. So यहाँ पे already we discussed in the features of management that management is a dynamic. The management is a dynamic. Here we discuss management creates a dynamic organization. Management creates a dynamic organization. How management creates a dynamic organization? So this environment is always changing environment. So if the organization want to survive in the changing environment, then it makes changes. It has to make changes according to the environment. Okay. मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मैनेजर इज रेडी टू मैनेजमेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, बट व्हाट विल हैपन, the workers, employees are important in the organization. With the help of the employees only we are going to achieve the organizational goals. So do you think that every employee or every employee is ready to challenge the ready to accept the challenges or ready to accept the changes? No, not every employee is not ready to accept the challenges. But what we have to do as a manager, he has to try convince the employee to accept the changes. कैसे कर सकते हैं हम लोग, लाइक अगर कोई भी पर्सन को हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज कर रहे हैं, वाई वी आर चेंजिंग दैट पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ सम इम्प्रूवमेंट. लाइक एक प्लेस में वो बहुत दिन से काम कर रहा है, बाई वे ऑफ प्रमोशनल मेथड और बाई वे ऑफ अदर कोई भी मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट में चेंज करें. बट द थिंग इज व्हाट, एवरी एम्प्लॉय इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स. बट हमको ये कन्विंस करना होगा कि जब हम चेंज कर रहे हैं, सो उनको जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट के साथ में उनको चेंज कर रहे हैं या समथिंग जो है उनको मिल रहा है. सो अदर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि नाउअडेज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा है. सो लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्रीवियस डे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, इतना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं होता था. लाइक ह्यूमन बीइंग जो है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स को काम करना पड़ता है. नाउ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सभी मशीनरीज एंड अदर थिंग्स जो है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, एम्प्लॉयज जो है इतने जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्विंस द पीपल. इफ दैट पर्सन ready to accept the change, automatically it not only gives benefit to the organization, it also going to give benefit to that person in the competitive world. एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. अगर कोई भी पर्सन को कंप्यूटर में काम करने के लिए देते हैं, एंड हम ये बोल सकते हैं कि ही हैज़ टू बी गिवन ट्रेनिंग, एंड देन उससे क्या होगा, नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको वो कंप्यूटर से बहुत सारा काम कर सकते हैं. सो दिस इज द मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. सो मैनेजर ऑलवेज ट्राइज टू अडॉप्ट द चेंजेस बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉयज and by convincing the other peoples in the organization to adopt the changes, not only for the benefit of organization, always for the also for the benefit of employees. Okay, next point is management helps in achieving personal objectives. Okay, management helps in achieving personal objectives. An efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employers and employees. So, एक efficient manager को कैसा होना चाहिए? Not only he has to bring the prosperity or wealth to the employer, he also has to bring the prosperity and wealth to the employees. So, employees जो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी उन्हें सोचना चाहिए. कैसे
सोचेंगे लाइक दोनों का गोल, लाइक एम्प्लॉइज गोल एंड एम्प्लॉयर के गोल, दोनों गोल को एक कॉमन डायरेक्शन में उनको लेके जाना चाहिए. हाउ इट इज पॉसिबल? लाइक वी हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉई दैट अगर वो एम्प्लॉई अपना गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, देन ये ऑटोमेटिकली ही हैज टू वर्क फॉर द कॉमन गोल. सो कॉमन गोल के हिसाब से अगर वो काम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली उनका गोल भी अचीव कर पाएंगे. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट objectives of the employer? The employer wants to give more and more production. Then second one is what is the aim of the employee? Employee उस organization में किस लिए join कर रहा है या किस लिए work कर रहा है? Employee wants to earn for their livelihood. So हम more and more earnings वो चाहते हैं. So हम क्या कर सकते हैं, यही इसी को लेकर हम समझा सकते हैं कि अगर आप production ज़्यादा देंगे, definitely there will be a increase in sales. So if the sales is increases, automatically we earn more revenue. So revenue अगर increase होगा, definitely there will be a profit. So profit increase होगा, automatically it increases the employees wages. So इस तरह से employees का अगर हम एम्प्लॉयज़ को हम समझाएंगे, देन ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ आर रेडी टू डू द वर्क फॉर देयर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव. सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के साथ में लेके अगर कॉमन गोल के थ्रू अगर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होगा एंड देन एम्प्लॉयर का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. सो हियर आल्सो मैनेजर ट्राइज टू डू द थिंग दैट इज ही हैज़ टू ट्राई दैट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर का गोल को जो है एक ही डायरेक्शन के थ्रू लेकर जाकर ये जो भी गोल्स है वो गोल को अचीव कर पा रहे हैं. Then the last importance of the management is management helps in development of society. So management helps in development of society. Efficient management always has a multiple objectives. They give due importance to social obligation towards different groups of people. So here we can say that already हम discuss किए हैं objectives of the management में, like social objectives में why social objectives is important in the management? Because organization is earning profit from the society. So हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए something we have to do. So here every manager, that is manager को अगर अपना organization को आगे लाना है, succeed करना है, survive करवाना है, then he has to do something for the society. So क्या कर सकते हैं, like सोसाइटी के लिए स्कूल्स ओपन करके देना, सोसाइटी में जो हम educational institutions, hospitals and other thing. Not only thing that like customers are there, then employees are there. Employees के benefit के लिए भी हम कुछ करके दे सकते हैं, because employees are also a part of the society. Then next जो है production में like eco friendly productions हम दे सकते हैं, and good quality of products हम दे सकते हैं, employment generate कर सकते हैं. So ये सब जो है हम कर सकते हैं. So always efficient manager ये सोचते हैं, if we are help the society, then automatically we do something for the society, automatically it will also helps to improve the organization, or it will also have a place in the society, that is organization का एक name रह जाएगा, then automatically वो organization survive कर सकते हैं in the competitive market. So ये सब जो है importance of management है, that is once again I recall the importance of management. Management helps in achieving group goal, management improves efficiency, management creates dynamic organization, management helps in achieving personal objectives, management helps in development of society. So okay, our next topic is nature of management. Okay, now nature of management. Here this is a complex टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है. लाइक नेचर ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंट ऑथर्स जो है डिफरेंट वे में बताए हैं. लाइक सम ऑथर्स सेज दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, सम ऑथर्स सेज दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट, एंड सम ऑथर्स सेज दैट मैनेजमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द प्रोफेशन. सो अब हम क्या कौन सा कंक्लूशन में आएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट. वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन बाय हैविंग द डीप नॉलेज ऑफ साइंस, देन आर्ट्स एंड देन प्रोफेशन. इसके बाद ही हम एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं वेदर द मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द मैनेजमेंट एज अ साइंस.
Management as a science. Before moving on to the management as a science, first we must know what is a science. Okay, so what is science, ये हम देखेंगे. Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logical observed findings, facts and events. Management as a science. First we must know the management as a science. आप 10th तक साइंस पढ़ के आए हैं, so आप जानते हैं what is science. Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logical observed findings, facts and events. So science में क्या होता है, lot of experiments के experiments होता है, and then that experiments also findings and facts होता है, facts and events के ऊपर होता है. Management as a science. So now we move on to the management as a science. So अगर हम लोगों को साइंस के बारे में नॉलेज होना है तो फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस में जाएंगे और फीचर्स ऑफ अ साइंस देखेंगे. सो फीचर्स ऑफ साइंस में देयर आर 4 फीचर्स ऑफ साइंस. दैट इज systematic body of knowledge, okay. Management as a science देखने के लिए first we have to go through the management. What is science? So science is having features of systematic body of knowledge, principles based on repeated experiments. Principles are based on logical and scientific observations, then universal validity. What is systematic body of knowledge? Systematic body of knowledge means if you want to acquire the knowledge of science, there is a systematic and organized way. The science has lot of books and materials through which we can acquire the knowledge of science. So it is a systematic one. Already it is available, and we can go through this to know the science. Then second one is principles based on repeated experiments. Science में जो है जो भी principles जो भी है जो भी principles है, that principles are based on the experiments. Repeated experiments के through ही ये principles को जो है derive किया गया है. Then third one is principles are based on logical and scientific observation. Again these principles are based on the logical and logic के through ही किए गए and scientific observation. Scientific observation किए हैं बहुत सारा लेबोरेटरीज एंड अदर थिंग्स में ऑब्जर्वेशन करके ही जो है ये साइंटिफिक थियरी जो भी है वो लाए हैं. देन नेक्स्ट वी कैन से दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी. ये जो भी साइंस है ये साइंस जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी है बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुआ है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हुआ है एंड होल यूनिवर्स में जो है इसको फॉलो कर रहे हैं. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी है ये सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं. नाउ हम लोगों को ये देखना है कि whether the management have all the things, ये हम लोगों को देखना है. तभी हम जाके कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि whether the management is a science or something else. So we move to the first one, systematic body of knowledge. As science has a systematic body of knowledge, same management is also having systematic body of knowledge. Like management is also having lot of books, managerial studies के लिए जो भी books हम लोगों को चाहिए सारे books सारे materials available है. So management जो है management का first things जो है इसमें available है. We can say that management is also having the features of systematic body of knowledge. Then second one is principles based on repeated experiments. Principles based on repeated experiments. जैसे प्रिंसिपल जो है साइंस में इट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, वैसे ही जो है मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल जो है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होगा. लाइक ईच एंड एवरी टाइम दे हैव टू एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज दे हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट वेदर हम लोगों को ये कर सकते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जो भी हम कर रहे हैं ये सही होगा कि नहीं है, या सॉल्व करके हम लोगों को देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम में ये जो है सॉल्यूशन ठीक रहेगा कि नहीं. ये एक मैनेजर को ट्राई करते रहना चाहिए. सो यहाँ पे ये जो फीचर्स है ये भी अवेलेबल है मैनेजमेंट में. देन थर्ड वन इज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. साइंस में जो है प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. सेम ऑब्जर्वेशंस हो रहा है बट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हो रहा है. बट ह्यूमन बीइंग्स को जो है वी कांट प्रेडिक्ट द ह्यूमन बीइंग्स. कितना भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो बिकॉज ह्यूमन बीइंग
beings are different, every human being differ from other human beings. So ये जो है हम लोग predict नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है एक्चुअली, जो लास्ट एंड रिजल्ट को जो है हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. सो ये जो प्रिंसिपल, ये जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट में नहीं है. द नेक्स्ट वी कैन से दैट इट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम हर जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कहीं भी हम जाएंगे सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम यूज करेंगे. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं, हर जगह पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, जो भी प्रिंसिपल्स है वो यूज नहीं कर सकते. वी आर हैविंग द प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग से है, बट ये जो प्रिंसिपल्स को हर जगह पे हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट वेरीज ऑन द सिचुएशन. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको जो है प्रॉब्लम जो भी होगा वो प्रॉब्लम को चेंज करना चाहिए. सो अदर थिंग इज व्हाट, सभी जगह पे एक ही जैसा प्रॉब्लम होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हर जगह पे ये क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ये चेंज हो सकता है. सो प्रिंसिपल को एज इट इज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम लोगों को चेंज करना होगा. सो ये जो that is features है ये भी मैनेजमेंट में नहीं है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस, इज इट करेक्ट और नॉट. सो इस फीचर से हम कंक्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस. सो एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है बिकॉज चार जो फीचर्स हम साइंस के बोले हैं ये चारों फीचर्स जो है वहाँ पे नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है. दैट्स व्हाई वी कांट से दैट मैनेजमेंट इज द एग्जैक्ट साइंस. अब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस तो है ही नहीं. देन नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, और वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस. हाउ, ये जो दो फीचर्स है लाइक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ये दो जो फीचर्स है ये दोनों फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ इन एग्जैक्ट साइंस और इट इज अ social science. Okay, next we move on to the management as an art. So according to that some authors said that management is a art. So again we have to conclude the things by comparing whether the management is an art or not with the features of the art. So before that, art can be defined as a systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection. आर्ट आप जानते ही हैं. सो ये आर्ट क्या है, इसको कैसा हम डिफाइन करते हैं, आर्ट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आप जानते ही हैं, एक आर्ट को सीखना है तो हम जो है पढ़कर ही सीख सकते हैं, ऐसे ही एक आर्ट को सीख नहीं सकते हैं. सो देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. एंड आर्ट में और क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी. आर्ट मीन्स इट इज़ अ क्रिएटिविटी. विदाउट क्रिएटिविटी इन आर्ट इज नथिंग. सो ये सब जो है आर्ट है. सो हम देखेंगे whether the management is a art or not. So इसके लिए first we have to move that what are the features of art. Features of art, number one is existence of theoretical knowledge. Then second one is personalized application. Third one is based on practice, creativity and imaging. Then we move to the first feature, that is existence of theoretical knowledge. What is the existence of theoretical knowledge? For example, if any person want to do a dance or want to practice a dance, so dance practice करने के लिए ऐसे ही जाके dance practice नहीं कर सकते हैं. Like dance practice करने के लिए first of all we must know the theoretical knowledge. So in arts जो है every arts that is there is a theoretical knowledge, not only in the dance. अगर आप म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं या अदर ड्राइंग आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी ये जो अदर साइड है आर्ट है वो साइड हम जो भी हम करना चाहेंगे, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. फर्स्ट वी हैव टू गेन और वी हैव टू एक्वायर द थियोरेटिकल नॉलेज. उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, आगे हम मूव कर सकते हैं. सो यही थियोरेटिकल नॉलेज जो है मैनेजमेंट में है कि नहीं हम देखेंगे. देन सेकेंड वन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आर्ट में कैसा होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट
second one, what is personalized application? Every individual differs from other. So for example, two dancers are there. वो डांसर थियोरेटिकल नॉलेज तो सेम होता है उनके पास, बट क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन अपना एक अलग रहता है, अपना जो है एक अलग क्रिएटिविटी रहेगा या एक अलग ये रहेगा. लाइक वी हैव टू यूज द थिंग्स इन द डांस और थिंग्स. से फॉर एग्जांपल टू म्यूजिशियंस को हम ले लेते हैं तो दोनों म्यूजिशियन एक ही तरह म्यूजिक कंपोज नहीं कर पाएंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन. इसी तरह हर चीज़ में हम देखेंगे, डांस ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, हर चीज़ में जो है डिफरेंट है. म्यूजिक में हम ले लेंगे तो देयर इज दैट इज 7 नोट्स. सो ईच एंड एवरी पर्सन अपना अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके हिसाब से वो उसको जो है कन्वर्ट करके करेंगे. सो उनका अपना नॉलेज जो है पर्सनलाइज्ड नॉलेज को जो है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू जो है वो उसमें सक्सीड हो सकते हैं. देन थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिन. सो आर्ट, यहाँ पे आर्ट में देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिस, देयर मस्ट बी अ क्रिएटिविटी, देयर मस्ट बी अ इमेजिन. इमेजिन के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं. एक डांस ही है तो डांस को जो है व्हेन वी आर गोइंग टू डू द डांस विदाउट इमेजिनेशन वी कांट डू द फुल फ्लेज्ड डांस. लाइक जो हम लोगों का एक्सप्रेशन जो भी होगा वो अगर हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इमेजिनरी जो है हमारे पास नहीं रहेगा, देन वी कांट डू द करेक्ट पोस्चर. देन सेकेंड में हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस. इफ यू वांट परफेक्शन इन दैट फील्ड, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन ओनली वी कैन गेट द प्रैक्टिस दैट इज परफेक्शन. देन नेक्स्ट वन क्रिएटिविटी. अगेन यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत काम करता है. तो क्रिएटिविटी के हिसाब से यू कैन चेंज एवरीथिंग. लाइक आपके पास सिस्टमेटिक नॉलेज होने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वहाँ पे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ आर्ट. Now हम देखेंगे whether the management is having these features or not. So number one, existence of theoretical knowledge. Management is also having existence of theoretical knowledge. Already हम discuss कर चुके हैं. If a person want to become a manager or if a person want to do managerial studies, then there is a existence of theoretical knowledge. With the help of theoretical knowledge, we can do the other things, that is manager और other जो भी हम लोगों को आगे पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ सकते हैं. Then second one is, so here this feature is there, that is existence of theoretical knowledge is there in the management. The next हम देख सकते हैं personalized application. So personalized application हम बोल लेते हैं अपना जो behavior है, अपने पास जो भी individual टैलेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट टैलेंट हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. सो हियर इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट. लाइक मैनेजमेंट में एक पर्सन जो है अपना जो नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज वो क्या करते हैं, जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन को टैकल करने का ट्राई करता है. सो ये दिस जो टैलेंट है डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सभी पर्सन के पास एक ही तरह का नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सनलाइज्ड टैलेंट पीपल क्या, मैनेजर क्या करता है, अपना जो भी प्रॉब्लम्स होता है, जो भी सिचुएशंस होता है वो सिचुएशन को टैकल करने का कोशिश करते हैं. सो मैनेजमेंट में जो ये जो आर्ट्स का जो भी फीचर्स है, ये फीचर्स भी अवेलेबल हैं. Then third one is based on practice, creativity and imagine. So जैसा आर्ट में प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिन का ज़रूरत है, वैसा ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस का ज़रूरत है, दैट इज़ क्रिएटिविटी का भी ज़रूरत है, इमेजिन का भी ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल अ मैनेजर ऑलवेज ही हैज़ टू इमेजिन दैट इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो हम व्हाट वी हैव टू डू. सो ये अगर वो इमेजिन करेगा देन ऑटोमेटिकली इमेजिनरी पावर उसके पास होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए वो अभी से जो है ट्राई करेगा. एंड अदर थिंग इज व्हाट प्रैक्टिस. सो मैनेजमेंट जो है ऑलवेज ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज एफिशिएंसी बाय प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस अपना एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे. सो हियर मैनेजर जो है अपना एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑलवेज ही यूज द प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस द थिंग्स. देन क्रिएटिविटी ऑलरेडी इट इज देयर, दैट इज एक पर्सन जो है अपना क्रिएटिविटी के हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करता है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो देयर इन द
मैनेजमेंट. सो मैंने आर्ट का जो भी फीचर्स है, ये सारा फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. सो मैनेजमेंट को एज एन आर्ट हम बोल सकते हैं. Okay, next topic is management as a profession. So again यहाँ पे ये confusion है whether the management is a profession or not. So here हम लोगों को again we have to go through the features of profession, then only we can come to a conclusion that whether the management is a profession or not. So what are the features? Number 1, well defined body of knowledge. Number 2, restricted entry. Number 3, presence of professional association. Number 4, ethical code. Then fifth one is service motive. So these are all the features of management. Now we will discuss one by one. Well-defined body of knowledge. What is well-defined body of knowledge? Professional is always having the well-defined body of knowledge. First of all, हम देखेंगे what is profession. Profession means what? There must be a specialized knowledge. That means a profession as backed with the specialized knowledge. एक कोई भी एक profession में हमें जाना है तो definitely we must possess the specialized knowledge. Then only we can be a profession or we can said to be a profession. So यहाँ पे हम देखेंगे well-defined body of knowledge. So profession is as a well-defined body of knowledge. So what is well-defined body of knowledge? Like if a person want to become a doctor, he must have a MBBS degree. Then only the person become a doctor. So ऐसी तरह हम बोल सकते हैं if a person want to a teacher, then he has to possess the qualification of like B.Ed training. So then only he or she can become a teacher. So वैसे ही मैनेजमेंट प्रोफेशन में आपको each and every profession में जो है some specialized knowledge is there. So that specialized knowledge is defined, well defined knowledge. आपको मैनेजमेंट के पढ़ना, मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो you have to go and acquire the knowledge of management. अगर आपको like डॉक्टर बनना है तो MBBS डिग्री करेंगे, एंड आपको लॉयर बनना है तो लॉयर LLB करेंगे. इस तरह each and everything is defined that आपको ये सब डिग्री या ये सब जो है नॉलेज एक्वायर करना है, देन ओनली आप जो है ये बन सकते हैं. सो दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. देन सेकंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. सो हियर प्रोफेशन में देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, दैट इज एवरी पीपल कैन नॉट बिकम अ प्रोफेशन. दैट इज कोई भी पर्सन जो है जैसा सोचेंगे वैसे ही प्रोफेशन नहीं बन सकते हैं. सेम थिंग हम फर्स्ट में जो बोले थे, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन डेफिनेटली हम लोगों को क्या करना चाहिए, डॉक्टर का डिग्री कंप्लीट करना चाहिए, देन ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं. सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन मीन्स इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. सो वहाँ पे हर कोई पर्सन जो है एंटर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए. वो क्वालिफिकेशन रहने से ही हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन हम जान सकते हैं. द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. एंड द अदर थिंग इज व्हाट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. एवरी प्रोफेशन हैज देयर ओन एसोसिएशन. सो ये एसोसिएशन किस लिए है, व्हेन अ पर्सन कंप्लीटिंग देयर डिग्री एज अ प्रोफेशन, then before practicing that profession he must or he or she must register her name in the association. After then only he or she has to practice as a doctor or something. So ये जो है presence of professional association, ये association already is there. So वो association में हम लोगों को क्या करना होगा, register करना होगा. For example, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज देयर. If a person completed his MBBS degree, then automatically he has to go and register with the Medical Council of India. Then only he can practice as a doctor. The same जो है आपको, if a person completed his LLB, then he want to practice as a lawyer. First of all, he has to go and go to the association, that is Bar Council of India, and he has to get registered his name in this Bar Council of India. Then only he can practice as a lawyer. So यहाँ पे क्या है कि सभी प्रोफेशनल
पर्सन जो भी होंगे उनका जो अपना एसोसिएशन है वो एसोसिएशन के थ्रू वो रजिस्टर्ड करेंगे, आफ्टर दैट ही वो क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड। सो एथिकल कोड्स हियर द वैल्यू दैट इज every professional person has to follow the values. We can say that it is just rules for that person, that is those who are the profession, they are having their own rules, they have to follow the rules. That means for example if there is a lawyer, अगर lawyer जो है कोई भी केस फाइट कर रहे हैं, so lawyer को ये नहीं देखना चाहिए जो आगे जो भी खड़े हैं he is his relative or something, there is a rule, he has to follow that ethical code. उनका अपना जो ethical code बना होगा प्रोफेशनल के पर्सन्स के लिए, वो प्रोफेशनल पर्सन्स वो अपना एथिकल कोड को फॉलो करके जाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोफेशन. देन सर्विस मोटिव, लाइक दिस पीपल दैट इज डॉक्टर्स, इंजीनियर, द डॉक्टर्स एंड द लॉयर्स एंड अदर प्रोफेशनल जो भी पर्सन्स हैं, दे आर डूइंग सर्विसेस टू द पीपल. सो ये जो है फीचर्स सर्विस मोटिव है इन द प्रोफेशन. सो well-defined body, restricted entity, presence of professional association, ethical code, service motive. Now we have to see that whether these features are available in the management or not. So हम लोगों को ये देखना है कि जो भी फीचर्स है ये फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है कि नहीं देखना है. So first, well-defined body of knowledge. Already it is said that every मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट के पास अपना अलग से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज देयर और दे आर हैविंग द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सो फर्स्ट फीचर इज अवेलेबल इन द मैनेजमेंट. देन सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. टिल नाउ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मैनेजमेंट के लिए. देयर आर कोर्सेस, डिफरेंट कोर्सेस आर देयर, बट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट देयर. दैट इज मैनेजमेंट. एवरी पीपल कैन बिकम अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर डिग्री ही कंप्लीट करना है, ये रेस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं है. सो कोई भी पर्सन कोई भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है आप एज अ मैनेजर एक्ट कर सकते हैं, एज अ मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट देयर, बट इन फ्यूचर ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी मैनेजमेंट कोर्सेस में आ जाएगा. देन प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसा एसोसिएशन इज देयर इन द प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर के लिए, MBBS डिग्री होल्डर के लिए एंड देन LLB डिग्री होल्डर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन इज देयर. सो वैसा यहाँ पे है कि नहीं, सम 1 or 2 एसोसिएशंस आर देयर इन कोलकाता एंड इन न्यू दिल्ली, बट दिस एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू रजिस्टर इन दिस एसोसिएशन, क्योंकि ये अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सभी जगह पे. मैनेजमेंट कोर्स जो भी कंप्लीट करते हैं वो मैनेजमेंट कोर्स वाले एसोसिएशन में रजिस्टर करना ये अभी तक हुआ नहीं है. सो ये जो है फीचर्स ये भी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, बट क्या है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट इज ये जो भी है हम उनके मैनेजर्स के लिए भी एक एसोसिएशन ला रहे हैं. जो भी मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करेंगे दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन द एसोसिएशन, उसके बाद वो जो है एज अ मैनेजर या जा सकते हैं. ये ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है. द नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड. सो एथिकल कोड भी मैनेजमेंट के लिए ऐसा, मैनेजर के लिए ऐसा कोई भी एथिकल कोड नहीं है. सो दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल एंड अदर थिंग्स. सो यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए भी कोई भी एथिकल कोड नहीं है. अगेन सर्विस मोटिव. मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दे हैव टू अर्न प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू अर्न प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सर्विस मोटिव ये हम बोल नहीं सकते कि सर्विस मोटिव वहाँ पे अवेलेबल है. मेन एंड इम्पॉर्टेंट मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेन एंड इम्पॉर्टेंट मोटिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो ये जो है ये भी अभी यहाँ पे नहीं है. सो हम ये बोल सकते हैं, बट द थिंग इज व्हाट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द थिंग दैट इज मैनेजमेंट कोर्सेस में भी क्या है कि ये प्रोफेशनल्स के थ्रू जो है मूव कर रहे हैं. इन फ्यूचर में मैनेजमेंट जो है एक प्रोफेशन हो सकता है, बट नॉट नाउ. अभी जो है मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं हुआ है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेड्ज्ड प्रोफेशन. इट इज नॉट अ फुल फ्लेड्ज्ड प्रोफेशन. सो with this I am concluding the nature of profession. So nature of
नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखे थे, 3 टाइप्स ऑफ नेचर देखे थे, दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस हम लोग ये बोले थे कि दैट इज मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस और नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस और इट इज अ सोशल साइंस। देन हम लोग देखे थे फीचर्स ऑफ आर्ट, हम लोग देखे थे। सो आर्ट में सभी फीचर्स जो है मैनेजमेंट में अवेलेबल है, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ आर्ट। सो यहाँ पे हम एक कोड भी दिए थे कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देन हम देखे थे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में देयर इज डिफरेंट फीचर्स आर देयर, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, बट इन फ्यूचर ये सब जो है हम अप्लाई कर पाएंगे। सो इट इज ये भी हम लोग देखे थे कि कंक्लूजन में मैनेजमेंट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट क्या है कि मैनेजमेंट इज अ बोथ आर्ट्स एंड वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ बोथ आर्ट्स एंड साइंस, क्योंकि इन एग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट। सो आर्ट्स का सभी जो फीचर्स है ये अवेलेबल है, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ बोथ आर्ट्स एंड साइंस। दोनों थिंग्स जो है उसमें रहना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट में नहीं, दोनों एक साथ चलना चाहिए। दैट इज साइंस का फीचर्स एंड आर्ट्स का फीचर्स को लेके ही मैनेजमेंट में हम लोग जो है बहुत सारा काम करते हैं। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जितना भी टॉपिक्स मैं अभी डिस्कस कर रही थी ये सारा पॉइंट्स जो है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इसके जो है और भी आप टेक्स्ट बुक के थ्रू और क्लियर कर सकते हैं ये पॉइंट को, जो भी हिंट्स मैंने दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस हिंट्स यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड फॉलो द टेक्स्ट बुक, उससे जो है आप और क्लियर हो सकते हैं। एंड टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो ये फॉलो करिए। ओके, आपके जो सामने स्लाइड है वो स्लाइड में जो है क्वेश्चंस आएगा, वो आप नोट कर लीजिए एंड नोट करके घर में जो है आप प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए इसका आंसर देने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मैनेजमेंट। आई थिंक ये इजीली आप बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट डे जो डिस्कस किए थे उसमें मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फर्स्ट टॉपिक ही हम लोग मैनेजमेंट से ही शुरू किए थे। सो ये जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज मल्टी-फेज्ड कॉन्सेप्ट। सो व्हाई इज मैनेजमेंट कंसिडर्ड एज मल्टी-फेज्ड कॉन्सेप्ट। ये भी आप फीचर्स से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, फीचर्स में ये अवेलेबल है। देन थर्ड वन इज हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। सो ये भी हम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग देखे थे। देन फोर्थ वन इज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल an organization must change its goal according to the needs of the environment. Which characteristics of management are highlighted in the statement? लाइक आप थोड़ा सा देखेंगे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ये चेंज है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। सो ट्राई, आप अगर कॉन्सेप्ट में क्लियर रहेंगे सो डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, सो इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली आंसर दे सकते हैं व्हेन यू आर हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। Okay, next question is management is considered as full-fledged profession. Do you agree with this statement? Give reason to support your answer. Just अभी हम लोग डिस्कस किए थे whether the management is considered as a profession or not. So यहाँ पे दिए हैं question management is considered as full-fledged profession. Do you agree with this statement? आप statement से agree करते हैं? If yes or if no, you have to give answer, that is reason आपको देना है why you are agreeing with this or why you are not agreeing with this. Then next question is management is the life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and shall never become production comment. So ये जो दो 2-3 questions are there, ये तीनों questions जो है somewhat application based questions हैं. So आप जो questions को जो है अच्छे से go through करिए and go through the topics, उसके बाद आप जो है आंसर देने का ट्राई कीजिए. ओके, विद दिस आज का जो टॉपिक्स है ये कंप्लीट हुआ. होप आप एंजॉय किए होंगे ये टॉपिक को, तो घर में आप एक बार रिवाइज करिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ.